option can be you can slice down the particular object, you can divide it, and as usually you use it in AutoCAD while trimming. So right now I'm deleting this particular thing. I'm going to give SL is the slice command, which used to divide two elements or break the two elements in between. So you can see now my elements has been breaked. So this is one element, this is the other element. And if I need this particular wall to be joined, I can use trim command. TR is for the joining sort of command. So this has been associated. I can move it, this particular thing with 3600 of length. So this shifts over here and I can stretch it. So this is how we have to do our planning by applying dimensional constraints to an spaces. Similarly, if this is suppose, yeah, let me have this as 7500. So this becomes 7500 and I want this particular length of room to be 8500. That is width of 8.5 meters. So this is how we can reverse, modify or enhance our own planning spaces by applying constraints to them. So let us just check whether which all activities are there. So right now it's been with for the level 2. Similarly, this is still level 2, level 1, and its top is level 2. Now let's just check its 3D. So this is how our planning space is going to look like. Similarly, I'm moving on to level 1 again. I will place certain doors again over here. Let me have one door here. Okay. And let's have an entrance from somewhere here. And I can specify certain other doors, so it will be automatically get into a different type. Suppose I need this door to be of certain other dimension types, so I can just go on to dimensions and I can select that particular dimensions. You can see the changes has been modified. Even once you select the door, you will get a temporary dimension from the edge of a wall. So if I just need it to be 100, I can keep it likewise. Right, so these modifications can be done. So I'm not going on to that part because we have seen this on yesterday. We were just trying to see how we have to apply a dimensional constraints to it. Now the basic part would be we will be dealing with the presentational drawings right now. So first thing for it is we have to tag down the rooms, whatsoever rooms are there, right? And we are also going to see like what additions can be made onto the 2D family types. So once you tag these spaces, they will be in a format of 2D families. So we can also modify our 2D families. We can add parameters to them. We can remove parameters based onto the 2D families. So now I'm just going with certain things like, again, I will go on to rooms and I will tag down the rooms. So one thing is before tagging, you have to see whether what is the upper limit. Right now I'm working with level 1 and my walls are going till level 2. That means I have to set my level upper limit of level as level 2. And still after level 2 it has an offset of 4000. That means my range is going till 8000. Level 2, from level 1 I am working at level 1 and level 2 has an height of 4000 mm, that is 4 meters, and plus the offset is 4000 more. So that means the entire thing that I am going to tag is going to take the height of 8000 mm, which I don't need. So I will make this offset as 0. So just now, as soon as you make it 0, now you are going to tag it by level 2, that is at till the height of 4000 mm. So now I'm just going to tag these spaces. Okay, so let me just say it is a corridor.
Let me have this as office 1. Mm, office 2. Let's have this as office 3. Mm, Let have the certain rooms. Let me have this as hall. And this can be a functional room or a battery room. Say this can be a battery room. This can be lounge sort of a space where or a waiting area. You can say waiting area. Okay. So this is how we have tagged an space to a certain height. And now we have to have these spaces functional. So once, so this is like 2D family. If I just double click on the family, you can see the family has been opened. So this is a 2D family type where 3 of the details or an information are given. One is the room name and the other is the room number, right? So there are two things. So I have tagged it by a name, जो भी मैंने नाम दिया, लॉन्च एरिया, वेटिंग एरिया, हॉल। तो इस इंफॉर्मेशन का फैमिली में होने के कारण ही आप वहां पे उस चीज की इंफॉर्मेशन दे पाए कि ये किस तरह का रूम है या कौन सा रूम है। सिमिलरली उसके साथ आपने देखा था कि एक नंबर भी एसोसिएटेड था, विच वॉज द रूम नंबर। तो वो पर्टिकुलरली इस टैगिंग के कारण आता है, राइट? इफ आई जस्ट मूव ऑन टू लेबल्स एंड सिलेक्ट इट, तो मैं फर्दर चीजें जो भी मुझे ऐड करनी है मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नीड द रूम नंबर, I will delete that. Okay, and I need a room area to be there. So what can I do is I can go on to create and I'm creating a label out of it. And I'm adding a area to a parameter name. So I have added an area, which can be in a form of a square foot of an area or a square meter of an area, depending on the units we have established. मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। सो नाउ रूम नेम है एंड वी हैव एन एरिया एसोसिएटेड विद इट। तो मैंने 2D फैमिली में कुछ चेंजेस किए। नाउ आई एम गोइंग बैक एंड लोडिंग दिस फैमिली बैक इनटू द प्रोजेक्ट, और मैं इसको ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन कर दे रहा हूँ, राइट? तो मैंने वहां पे चीजों को एरिया के साथ एसोसिएट किया था। सो यू कैन सी द नंबर हैज बीन रिमूव्ड, name of a area is there, and particular carpet area which is there, which is like this internal carpet area, that has been calculated over here as 99 meters square of an area। तो हमारी यूनिट्स मीटर्स या एमएम में सेट थी, सो एरिया वुड बी इन मीटर्स। सिमिलरली वहां पे हमने ऑन टू द 2D फैमिलीज वी हैव एडेड अ पैरामीटर ऑफ एरिया एंड वी हैव रिमूव्ड अ पैरामीटर ऑफ नंबर्स। अगर हमें तीनों चाहिए होते तो वी कैन कीप दोस थ्री टुगेदर, कि नंबर भी हो, रूम का नाम भी हो, एज वेल एज एरिया एसोसिएटेड और अ कारपेट एरिया एसोसिएटेड विद इट, वो भी आपको मिले। सो इस तरह से 2D फैमिलीज बेसिकली वर्क करती हैं, राइट? So this is what we have done, and now we are going to make a presentational drawing out of it. तो सबसे पहले I am going on to annotate and I am filling it with a colorful legend. So I have rooms and I need them by the names. So now you can see we have this particular plan with certain colors that are representing to an area. Second thing is I have this particular section as floor plans. So on to the left hand side, you can see we have the properties, like this is particularly the floor plan area. Now what if I have to create a separate folder structure for say floor plans presentation drawings? So whatsoever presentation drawings I am going to make, I am going to shift that onto that particular folder, which is known as presentational drawings. So I am going to create other type of it.
So now I'm going to duplicate it and I'm going to create presentation drawing, right? So under the system family floor plans, we have an type of floor plan, which was here. Now we will be having a different type, which is presentation drawing. And I'm going to do OK. So now you can see floor plans is there and we have floor plans presentation drawing as well over here. So जो भी मेरा level 1 selected था, that has been shifted on to this particular presentation drawing. Similarly, let me just copy this to a flow number 2. Okay, same block, I'm trying to copy it. So I will filter it. I need doors, I don't need dimensions. I need walls, I don't need rooms and room text. These things I don't need, but what I need is walls and doors, right? I will copy this and I will paste it to a selected level. So I'm going to paste it at level number 2. So now you can see our building has been transformed something like this. Okay. And now suppose this at the top becomes my balcony area or terrace area. So I can split this particular element in between, from between. So I have splitted one of the sections and I'm going to trim it. So now you can see मैं इस particular wall को remove कर सकता हूँ या as a parapet use कर सकता हूँ. तो डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसा है, राइट? सो अभी तो मैंने स्लैब बनाया नहीं है, आई हैव जस्ट कॉपीड दैट पर्टिकुलर पार्ट और यहाँ से कुछ डोर होगा एंड आई एम गोइंग टू ट्रिम दिस एरिया एज वेल. सो दिस इज हाउ द something the building block looks like. Okay, so this becomes my terrace area at the top now. Similarly, ये चीज मेरी level 2 में इस तरह की planning हुई है. So you can see this has been graded out. मेरे को बेस दिख रहा है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे मैंने बनाया हुआ था लेवल नंबर 1 पे. सिमिलरली अगर मुझे इसका भी पोजीशनिंग करना है या presentation drawing बनानी है, I am going to tag those spaces again and what I'm going to do is level 2, I am going to shift this level 2 onto that presentation folder. अभी level 1 ही है presentation folder के अंदर, I am going to shift level 2 onto the same floor plans again. So selecting down the level 2 and under the floor plans, now there are two options of different types. First was floor plans, other was presentation drawing. So now I'm going to take this level 2 on to presentation folder. So now you can see under the presentation drawing, हमारे पास level 1 and level 2 आ गया. So this is how you are going to associate your particular level onto the presentation drawing. तो तरीका ये था कि फ्लोर प्लान्स में पहले हम डिटेल या कॉन्सेप्चुअल लेवल की ड्राइंग्स बना लेंगे. हम उस पर्टिकुलर चीज को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे. वी आर गोइंग टू डुप्लीकेट इट, जैसे हमने कल किया था, डुप्लीकेटेड विद डिटेलिंग और डुप्लीकेट. फिर उसमें पर्टिकुलर व्यू में हम कलर लेजेंड्स डालेंगे एंड वी आर गोइंग टू शिफ्ट दैट पर्टिकुलर प्लान ऑन टू अ पर्टिकुलर फोल्डर स्टाइल. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस. अब मुझे इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे लेवल 1 पे से आई ऑल्सो नीड द कलर हैचेस. वॉल्स पे भी कुछ हैचेस होंगे, उस पे भी कुछ कलर्स होंगे, राइट? तो उस चीजों को जैसे हम कैड में यूजिंग हैचेस डालते हैं, सो वी हैव द कैटेगरी ऑफ हैचेस डायरेक्टली ऑन टू Revit. So the shortcut to this is VG. And under VG, I can go with the option of walls particularly. So under this, you can see two different things. One is project surface. So this particular project surfaces are used for the elevation hatches. Whenever we are trying to cut a plan, because plan जो हम बना रहे हैं, that is cut at a certain level, maybe the cell level or any other level XYZ. So it has been cut. So we have to modify the things on to this particular section, which is cut. So under cut, I have this wall. So these are like lines and patterns, right? So I will be going on to pattern
So over here you can see I have a foreground pattern to it and a background pattern to it. तो मैं foreground and background patterns दे सकता हूँ. So for example, let us just keep a solid fill on the background. So एक solid fill होगा जो कि orange color का होगा, and उसके ऊपर there can be a wall hatch, brick wall hatch with a certain color which is black color. Okay, so now the hatch at foreground pattern would be this particular brick hatch with black color, और उसके नीचे हमारे पास solid fill orange color visible होगा, and I will apply this. So now you can see our walls have been turned into a black hatch, particularly wall hatch, और उसके पीछे हमारे पास orange color का solid fill color आ गया. इसकी लाइन विड्थ एंड ऑब्जेक्ट स्टाइल्स बहुत सारी चीजें हैं जो कि यू कैन चेंज इट फर्दर अपॉन, बट दिस इज मेनली द व्हाट presentational parts are there, right? So this was one of that part which we are associating it with VG, which is known as visibility graphics. और visibility graphics हर एक व्यू के लिए सेपरेट होता है, तो अगर मैंने उसे लेवल 1 पे अप्लाई किया है तो वो लेवल 2 पे अप्लाई नहीं होगा. आपको फिर से जाके लेवल 2 के लिए सेपरेटली उसको अप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं लेवल 2 पे जाता हूँ तो देखिए इट इज सेम एज अ ब्लैंक वॉल. अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल पे आके फिर से वीजी को अप्लाई करता हूँ और फिर से वॉल्स के सेक्शंस पे जाके मैं कलर्स को असाइन करता हूँ, देन ओनली इट इज गोइंग टू अप्लाई ऑन टू लेवल 2. नहीं तो बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर व्यू. सो अगेन मुझे सेम हैच चाहिए विच इज इन ब्लैक कलर, and let me have a different solid color at background. तो इस बार मैं कुछ ये वाला कलर ले लेता हूँ. Sorry. Apply it and okay. So now it is going to be applied on level number 2 and level 1. So this is how visibility graphic is been associated with a particular view type. तो हर व्यू के लिए visibility graphics different रहेंगे या आपको modify करने पड़ेंगे. Now कमिंग बैक टू द पार्ट कि अगर एक ही फ्लोर प्लान्स पे हमारे पास मल्टीपल वॉल्स हैं, राइट? कुछ 200 की वॉल्स हैं. अभी क्या हुआ कि हमने विजिबिलिटी ग्राफिक को अप्लाई किया तो जितनी भी वॉल्स थी, वेदर 100 mm वॉल, 200 mm वॉल, 300 mm वॉल, पार्टीशन वॉल 75 mm, जितनी भी वॉल्स थी उन सब में एक ही कलर डिमार्केशन आ गया, राइट? इट हैज गॉट ऑल दी सेम कलर डिमार्केशंस. अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग बैक टू वीजी. so I am in level 1. Under VG section I am selecting down the walls again, और मैं यहाँ पे सब चीजें बैक टू 0 कर देता हूँ कि it has no override. Here also it has no override. Okay, and I will apply this. So again, I'm back to 0. And suppose this wall is 200 mm. I want it to be of this thing. Need this wall to be same as this. I have matched it. And suppose I have also matched this MA. So now I'm having different types of walls. So in order to give colors and hatches to them, what you need to do is we have the second option. Like one, I can select the 200 mm wall, which is a type of wall. I can go on to select all instances visible in view. So whatsoever are the 200 mm walls that are going to be selected directly. Now I will right click onto them and I have an option of override graphics in view by elements and by categories. नाउ यहाँ पे मैं सेम फोरग्राउंड पैटर्न में, क्योंकि अभी मैं प्लान्स में हूं तो हम कट पैटर्न की बात करेंगे, नॉट विद द सरफेस पैटर्न बिकॉज वी आर नॉट इन एलिवेशन. सो दिस इज हाउ cut lines. So then again you have to mention the pattern color.
सिमिलरली फॉर द बैकग्राउंड पैटर्न एंड कलर। तो अब केवल जो कलर्स एंड पैटर्न्स एलोकेट होंगे, इट इज गोइंग टू बी इन 200 mm walls. Okay, and for again 100 mm you have to select it again, select all instances visible in view whatsoever is the type of wall that is going to be selected, और आप उसको particular color दे सकते हैं. So in this way you can even demarcate with different color codings onto a same plan. So this makes more sense, right? कि 100 mm walls are shown by the same hatch but with a different color. 200 walls walls are shown with a different color with a different with a same hatch. So this will give a base to your representation for demarcating, and as well as you can compare both of them कि कौन सी walls हैं जो कि different हैं even with the colors. So this is how we eventually work with this presentation sort of drawings. So now we will be having a 10 minutes practice session for you, and I will be stop sharing. In case you feel any doubt is there, you can feel please feel free to ask for that. Yeah. I hope all of you have the software installed in your system, right? सर ये रूम टैग करने में जो हम फैमिली में जाते हैं, Right. वहाँ पे हमने जब एक पैरामीटर डाला एरिया था, उसके ठीक बाद है. फिर जब उसको लोड इनटू प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो फिर वो उस पर शो नहीं हो रहा है। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिए. हेलो। हाँ सर, जूम करिए थोड़ा. करेक्ट. अब उसको डबल क्लिक करिए. नहीं, इसको नहीं, हाँ बॉक्स को. करेक्ट. अब सबसे पहले तो आप 150 को रिमूव कर दीजिए. सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए. सिमिलरली 101 को भी सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए. राइट. अब आप लेबल पे जाइए, ड्रॉ लेबल ऊपर जो है क्रिएट पे, देन लेबल के ऑप्शन में. राइट. अब इसको रूम के नीचे प्लेस कीजिए. यस. ये एरिया को पहले इसमें डालेंगे ना? टैग करिए, हाँ. ओके करिए. अप्लाई एंड ओके. राइट. तो अब रूम नेम के ऊपर आपका एरिया आया है. अब आप उस एरिया को रूम के ऊपर देखना चाहते हैं या नीचे, या आपके ऊपर है. एस्केप करिए और उस पर्टिकुलर पैरामीटर को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दीजिए. हाँ. करेक्ट है ना. अब लोड इनटू द प्रोजेक्ट करिए. ओके, यस. थैंक यू। तो होता ये है कि जो नॉमिनल फैमिलीज बनी होती है ना, 2D फैमिलीज, उसमें भी जब भी आप वीजी करके विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाएंगे तो वहां पे भी नंबर ऑफ ऑप्शंस रहते हैं जो कि बंद रहते हैं. तो पहले भी पैरामीटर डले हुए थे, राइट. नंबर डला हुआ था, देन एरिया का भी पैरामीटर डला हुआ था, बट वो विजिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जब उसमें वीजी टाइप करेंगे फैमिली के अंदर जाके, तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर एरिया उसको हाइड करके रखा होगा. तो उसको बस आपको एक बार चेक ऑन करना है. नहीं तो भी आप सिंपल पैरामीटर को डिलीट करके एक बार न्यू पैरामीटर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. ओके सर। और सर अगर जैसे यहाँ पे हमारा डोर है, इसमें हम्म. अगर मुझे कुछ चेंज करना है या इसमें मुझे ट्रिम्स लगाने ऐड ऑन करना है,
तो तो वो ये कैसे सर होगा? आपको पर्टिकुलरली फैमिली पे ही जाके एडिट करना पड़ेगा सब कुछ, बिकॉज डोर की ये पर्टिकुलर लोडेबल फैमिलीज हैं, राइट। अगर आप डोर हाँ। को ही डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फैमिली ओपन हो जाती है। फिर आप उसमें डिफरेंट कमांड्स रहते हैं, जैसे एक्सट्रूजन का यूज करके आपको जैम बनाना है, किसी और तरह का चौखट बनाना है जिसको हम जैम कह रहा हूँ मैं। तो अगर कुछ हम्म। अलग तरह की चीजें प्रोफाइल्स बनानी है तो पहले उसको डिलीट करके आपको फिर स्वीप कमांड को यूज करके आप प्रोफाइल्स बना लेंगे। फिर आप उसको लोड करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो आपने डायमेंशंस चीजें दी होंगी वो आ जाएगी। तो वो क्योंकि डोर की डिटेल्स तो हम बेसिकली फैमिली क्रिएशन में ही देखेंगे, बिकॉज वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है समझना। तो ये हम लोग अभी फैमिली क्रिएशन करेंगे। ठीक है, आप अभी आई नहीं मीन सर, बस। आज नहीं करेंगे। हम ये अच्छा। तीसरे या चौथे दिन है फैमिली क्रिएशन का ऑप्शंस। ओके। तो उस दिन हम डोर्स एंड विंडोज की फैमिलीज को लेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को फैमिली का कॉन्सेप्ट बता दूंगा बट वो डोर का नहीं रहेगा। दैट वुड बी मोर ऑफ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बोल सकते हो, कि कोई भी ओके फैमिली सर। वर्क कैसे करती है, रेफरेंस प्लेन वर्क्स कैसे करते हैं, हम पैरामीटर्स उसमें बनाते कैसे हैं, फिर कैसे हम अपने तरह के पैरामीटर कस्टम पैरामीटर्स बना के उसको लोड कैसे करेंगे। आज हम केवल ये देखेंगे कि फैमिली काम कैसे करती है। ओके। और सर अगर ये हमने कॉपी बनाया लेयर में, जो हमने हम्म। प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे थे, करेक्ट। और उस वॉल में अगर हम एडिट टाइप करके उसकी फोरग्राउंड बैकग्राउंड और कट पैटर्न में अगर चेंज कर दें, तो करेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट में हो जाएगा या फिर उसी लेवल पे नहीं, होगा? केवल केवल उसी लेवल पे होगा, क्योंकि आप जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स को एसोसिएट कर रहे हो वो पर्टिकुलर व्यू से एसोसिएटेड है, तो पर्टिकुलर लेवल से ही एसोसिएटेड रहेगा। तो मान लीजिए आपने लेवल 1 में एक वर्किंग ड्राइंग बनाई है, ठीक है, हम्म। जिसमें आपने सब कुछ डायमेंशंस डिटेल कर दिए हैं, सब कुछ डिटेलिंग कर दिया है अच्छे से, बट हम्म। आपने उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं डाला है। तो मैं क्या करूंगा, उसको राइट क्लिक करके दो ऑप्शंस रहते हैं जैसे मैं बताया था, वन इज डुप्लीकेट, अदर इज डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। तो अगर आपको हम्म। सेम चीजें डायमेंशंस और ये सब भी चाहिए तो आप डिटेलिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं तो डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लेवल 1 का डुप्लीकेट बन गया मान लीजिए। अब पर्टिकुलरली मैं लेवल 1 का जो डुप्लीकेट बना है उस लेवल पे जाऊंगा, और वहां पे मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स के थ्रू केवल प्रेजेंटेशन वाली चीजों को इनपुट करूंगा। तो वो केवल उस पर्टिकुलर प्लान पे ही आपका इम्प्लीमेंट होगा, वो आपकी वर्किंग ड्राइंग पे नहीं होगा। तो एट अ सेम टाइम क्या हुआ, आपकी वर्किंग ड्राइंग भी बन गई, एट अ सेम टाइम आपका प्रेजेंटेशन ड्राइंग भी बन गया, ये चीज। ओके। तो 10 मिनट्स प्रैक्टिस कर लीजिए, हम 11 o'clock वापस रिज्यूम करते हैं सेशन। और इस बार हम मूव करेंगे कि कैट को इंपोर्ट करके लेयर्स को मैनेज कैसे करेंगे। देन we will be looking at importing the structural families onto template, और फिर शीट्स पे ले जाने के लिए हम अदर सेटिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, क्रॉप सेटिंग, व्यू स्केल सेटिंग, तो हम उनको देखेंगे फिर। कृति मैम, आई एम रिपीटिंग दिस फॉर यू, लाइक कि कलर फिल एजेंट्स कैसे ला सकते हैं या रूम्स पे डिफरेंट कलर्स कैसे फिल कर सकते हैं। आई विल रिपीट दिस अगेन। तो सो राइट नाउ, ओके, आई एम इन लेवल नंबर 2, तो जहाँ पे कोई भी कलर फिल एजेंट्स नहीं है, राइट। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टैग डाउन द रूम्स। So under the architecture tab, you have that particular option of tagging down the rooms. Now,
आई एम ऑन टू अपर लेवल, तो इसके ऊपर भी एक अपर लेवल होगा, तो मैं उस पर्टिकुलर लेवल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो भी अभी मैं बेस लेवल लेवल नंबर 2 सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सो लेवल नंबर 2 विथ अ ऑफसेट ऑफ 4000, अभी मैं लेवल 2 पे ही था एंड आई एम इन लेवल नंबर 2, बट मैंने हाइट कितनी दे दी है अब, लेवल 2 से 4000 की हाइट दे दी है, क्योंकि मैंने लेवल्स बनाए नहीं थे अपने एलिवेशंस पे जाके, तो अब मैंने उसका ऑफसेट रखा है 4000। तो जो भी हाइट टैग कर रहा है वो 4000 की हाइट तक टैग कर रहा है लेवल नंबर 2 से। सो अगेन अगर ये पर्टिकुलर रूम्स डिफरेंट है यहाँ पे, तो मैंने टैग कर दिए फर्स्ट थिंग। सो मान लीजिए यहाँ पे ये स्पेस फिर से हॉल ही है, दिस इज हॉल एंड दिस बिकम्स एट द टॉप फ्लोर, ये रूम बन जाता है बेडरूम। Same space is going to be master bedroom, and this can be children's bedroom. Children's room you can say, and this can be additional room. तो जैसे भी मैंने टैग्स को प्लेस कर दिया, नाउ आई वुड go on to annotate tab and I have an option of color fill legends. I will bring that color fill legends over here and will click it, just click it. Now it asks me for the space type. So मैंने rooms tag किए, right? I haven't tagged the spaces. So I will go on to the rooms part. अब मुझे कैटेगराइज करना है रूम को डिपार्टमेंट वाइज, नेम वाइज, तो आई हैव गिवन नेम्स टू द रूम लाइक हॉल, बेडरूम, मास्टर बेडरूम। सो मुझे नेमिंग के थ्रू कैटेगराइजेशन चाहिए लेजेंड्स में, तो मैं नेम को प्रेफर कर लेता हूँ एंड ओके करता हूँ। सो एज सुन एज आई डू दैट, रूम के लेजेंड्स आ जाएंगे आपके पास और कलर कोडिंग्स आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर कलर कोडिंग पर्टिकुलर लेवल के लिए एसोसिएटेड है, और यहाँ पे जाओगे आप तो बैक other color codings होंगी with room legends. So this is how we are bringing down the annotations and color legends.
The voice is not clear. Visual is also not coming. Ya, ¿qué la fue que leído? अरे वो मत खोल, नीचे लगा नीचे ही लगा ना, नीचे ही लगा है। तो फिर वो उधर लगा, मेरे को लगा नहीं। अरे भाई ये नीचे नीचे से लेना, नीचे और एक पावर पॉइंट। तो मेरे को चार्जिंग लगा नहीं। तो चार्जिंग कैसे लगा है? नीचे से लगा। तो इसका नहीं, फोन का भी लगा नहीं। अरे फोन का ही कह रहा हूँ ना। ये फोन थोड़ी है, फोन के लिए थोड़ी, फोन के लिए तो मेरा अलग है ना। हाँ, तो वही कर। मैं अरे व्यू नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर मैंने अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप किया हुआ है।
So now we are going to see how to import a CAD file, or whether to import it or link it, what is the better method to work with, and so that we can have a base map ready onto our Revit and we can model it out. So the first thing that I'm going to do is I'm trying to open a new file. I'm just closing all these files. Okay, and I'm going to open a new part. So this is a separate workflow, I would say rather, कि इस तरह से भी अगर CAD ड्राइंग्स मिलती हैं और उसको आप डायरेक्टली 3D में मॉडल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, so you can also do that. Right. So I have an option for insert. I will go on to insert. Now there are two different options. One is to import a CAD file over here and other is to link a CAD file. तो दोनों में अंतर इतना है कि import करोगे आप फाइल को तो वो एज अ ब्लॉक की तरह इंसर्ट होगी and you cannot make alterations to your CAD file, right? But whenever you try to link a CAD file, it automatically gets synchronized with this particular इंटरफेस ऑफ सॉफ्टवेयर. तो अगर मैं कैट फाइल में वापस जाके चेंजेस करूंगा तो मेरे को यहाँ पे वो चीज नोटिफिकेशंस दिखाएगी कि दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड ओवर देयर. तो आप जस्ट उसमें अपडेट करोगे तो वो फाइल भी यहाँ पे एट अ सेम टाइम अपडेट हो जाएगी. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स बाय लिंकिंग अ कैट फाइल. और इवेंचुअली आप कैट फाइल में जितनी भी लेयर्स होंगी या उसमें जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स चल रहे होंगे उसको भी आप रेविट के इंटरफेस पे आके मैनेज कर सकते हो. तो वापस आपको कैट पे जाके कोई भी चीज़ों को हाइड, एनहेंस या लेयर्स ऑन एंड ऑफ नहीं करनी पड़ेंगी. वो डायरेक्टली आप रेविट में इंसर्ट करने के बाद ही उसको मैनेज कर सकते हो अपने वर्किंग स्टाइल के बेसिस पे. तो मैं इंपोर्ट ऑप्शन पे नहीं जाता हूँ. I will be going on to linking a CAD option. So I have certain CAD files with me. So I am in level number 1 right now, and I'm choosing ground floor plan first thing. Now it's more important to know where to insert and how to insert. So I have this file. Now if I need preserve, so I can go with that option. जो भी layers में जिस भी properties पे होंगी, जिस भी colors पे होंगी, वो as it is आएंगी. और suppose I am going with the auto detect option. जो भी units मेरे CAD में है वो as it is यहाँ transfer हो. So I am going with the auto detect option. Now the positioning matters. Origin to origin है. That means internal origin जहाँ पे भी CAD में ये drawing बनी होगी वो उसको internal origin Revit के रेफरेंस से इस्टेब्लिश करेगा. तो Revit में जहां भी 0 0 है उसके बेसिस पे अगर आपकी कैट ड्राइंग किसी और XY कोऑर्डिनेट्स पे बनी होगी तो वो वहां उसको शिफ्ट कर देगा. सो आई एम नॉट गोइंग विद दैट ऑप्शन. मैं चाहता हूं कि जो भी ड्राइंग है वो मेरी एग्जैक्ट सेंटर टू सेंटर आके रीलोकेट हो जाए ऑन टू रेविट. मुझे सर्च नहीं करना पड़े कि ड्राइंग गई कहाँ. अगेन मैं जूम करूंगा, जूम एक्सटेंड करूंगा, फिर ढूंढूंगा कि ड्राइंग है कहाँ, फिर उसको ड्रैग करके उस पोजीशन पे लाऊंगा. सो रेदर देन गोइंग ऑन टू दैट ऑप्शन मैं सेंटर टू सेंटर ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं उसको लेवल 1 पे प्लेस करना चाहता हूँ जहां पे मैं अभी हूँ. एंड आई विल ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल. So now you can see the CAD file has appeared onto my interface. अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने ऑटो डिटेक्ट किया था. So whether my dimension and scales of a drawing are correct or not. तो मैं यूनिट्स चेक कर लेता हूँ. सो दिस इज इन mm और मेरी फाइल भी mm में थी, CAD फाइल. सो आई विल जस्ट टाइप DI and I will check whether distances are correct or not. So this is absolutely correct.
मैंने यहाँ से यहाँ चेक कर लिया कि 3315, सो आई नो कि स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज करेक्ट, जो कि मैंने रेविट पे लाया हूँ। एग्जैक्ट वही स्केल है 1:1 की, जो कि कैड में बना हुआ था, राइट। सो नाउ आई हैव सर्टेन अदर ऑप्शंस टू मैनेज इट। सो आई विल सिलेक्ट पर्टिकुलरली द कैड फाइल। अब मैंने लिंक किया है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरा जो भी चीजें कैड में मैनेज करने की थी, मैं उसको रेविट पे भी लाके मैनेज कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे केवल बेस प्रोफाइल बनानी है कि ये मेरी बिल्डिंग है, और मुझे इतनी डिटेल आउट जितनी भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो नहीं चाहिए, मुझे XYZ डायमेंशंस नहीं चाहिए। सो आई कैन स्विच ऑफ दोज लेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम रेविट। मैं क्वेरी के ऑप्शन पे जाता हूँ, और मैं जैसे भी उस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करूंगा, सपोज मैंने टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट की, तो वो कौन सी लेयर है ये डिफाइन कर देगा, और उसको डिलीट करना है कि हाइड करना है ये आपका ऑप्शन है। तो मैं अभी मैनेज करने के लिए उसको ऑफ कर देता हूँ, मतलब हाइड कर देता हूँ उस व्यू से। तो ये हाइड हो गया। सिमिलरली मुझे इसे भी हाइड करना है, मैंने इसको भी हाइड कर दिया। सो डायमेंशंस मुझे नहीं चाहिए कि मेरी चीज़ें ऑल सॉर्टेड हो जाएं, राइट। तो मैंने डायमेंशंस की लेयर्स को भी ऑफ कर दिया। अब मेरे लिए काम करना इजी हो गया, क्योंकि मेरे पास सिंपल बेस प्लान आ गया कि मुझे कहाँ कहाँ वॉल ड्रॉ करनी है, कहाँ कहाँ कॉलम्स लेआउट लेने हैं, एंड सो ऑन। सो नाउ माय थिंग्स आर बीन सॉर्टेड। मुझे फर्नीचर्स की भी नेसेसिटी नहीं है, फर्नीचर्स की लेयर को भी मैं हाइड कर सकता हूँ, राइट। सो जिस हिसाब से भी कैड में चीजें मॉडिफाइड रहेंगी, उस हिसाब से आप उसको रेविट पे भी मैनेज कर सकते हैं। So this is how we have linked an CAD file. We have just managed it to switch off its layer and on and off. तो अगर मुझे वापस से इन सब लेयर्स को ऑन एंड ऑफ करना है, तो आई हैव दैट अगेन ऑप्शन ऑफ VG। मैं इस पर्टिकुलर व्यू में VG को अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने इंपोर्ट की है कैट फाइल। सो राइट नाउ आई वुड बी गोइंग ऑन टू द इंपोर्टेड कैटेगरीज ऑप्शन। मैं जैसे भी इंपोर्ट करता हूँ, तो जो फाइल मैंने इंपोर्ट की है उस फाइल की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज लाइक ग्राउंड फ्लोर प्लान। और मैं प्लस आइकन पे करता हूँ, तो कौन कौन सी लेयर्स मैंने ऑफ कर दी हैं वो चीजें आ गई हैं यहाँ पे। ये सब लेयर्स टेक्स्ट की अपन ने ऑफ की थी, तो वो यहाँ पे भी मैनेज हो रही है। तो आपको अगर डायरेक्टली इस कैट फाइल को डिलीट करना है, तो यहीं से जाके डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको और फर्दर लेयर्स भी मैनेज करनी है, तो यहीं से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज वेयर अंडर द विजिबिलिटी ग्राफिक्स, अंडर द इंपोर्टेड कैटेगरीज, आप अपनी कैट फाइल की लेयर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं कैट फाइल को भी बंद कर दूंगा और अप्लाई करूंगा, तो आप देखोगे कि मेरी कैट फाइल ऑफ हो गई इस पर्टिकुलर लेवल नंबर 1 पे, जहां पे हमने उसको इंसर्ट किया था। अगेन जाके मैं जस्ट ऑन कर देता हूँ उसको, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट। और अब इस पर्टिकुलर पोर्शन पे मुझे ग्रिड्स बनानी है, तो मेरे पास इन्होंने ग्रिड्स की रेफरेंस दी हुई है, राइट। ABCD 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, I am going to establish this grid onto Revit directly. So under the architecture tab, I have the option of creating the grids. ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो रहता है मैं नॉर्मली क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है जहां पे भी मेरी ग्रिड लाइंस हैं, मैं केवल उसको पिक करूंगा तो वो मेरी ग्रिड लाइंस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैं पिक लाइन के ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करूंगा। आई विल सिलेक्ट दैट एंड आई विल पिक दिस। सो नाउ यू कैन सी इट इज वन ऑटोमेटिकली नेम्ड। इसको 2 3, तो जहां जहां ग्रिड्स थे मैंने केवल उसको सिलेक्ट किया, मेरे रेविट में ऑटोमेटिकली ग्रिड्स क्रिएट होती जा रही हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी ग्रिड्स चाहिए, राइट। एंड मैंने ग्रिड क्रिएट किया, और यहाँ पे मुझे ABCD के नाम से चाहिए। सो आई एम गोइंग टू मेक इट एज A, एंड अगेन अंडर द आर्किटेक्चरल टैब आई एम गोइंग टू पिक द लाइन, और मैं इसको सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। सो ऑटोमेटिकली ABCDEFG। सो नाउ माई ग्रिड्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो अगर मैं VG करके अपनी कैट फाइल को बंद करके फिर से देखूं, तो मेरे रेविट में ग्रिड्स ऑटोमेटिकली मैंने इस्टेब्लिश कर ली है, जिस हिसाब से मैंने वहां पे कैड में फाइल्स को लिवरेज किया था।
So this is how the grids has been established. अब मैं चाहता हूं इसमें आई एम नॉट गोइंग विद द कैड एस्पेक्ट, क्योंकि वहां पे आपको पता है कहाँ कहाँ वॉल्स हैं, वॉल्स बनानी कैसे है। अब मैं जा रहा हूं दूसरे एस्पेक्ट में, विच वॉज स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट, जहां पे मुझे मैंने एक डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज किया है, राइट, बट उसमें आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स की विजिबिलिटी है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की विजिबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर टैब में जाता हूं और कॉलम्स पे जाता हूं, तो आप देखोगे अंडर द कॉलम मेरे पास केवल एक ही टाइप अवेलेबल है, विच इज दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि स्टील सेक्शन है, यूनिवर्सल कॉलम, यूसी यूनिवर्सल कॉलम्स विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो मेरे पास केवल अवेलेबल सेक्शन स्टील का है, विच आई डोंट नीड। आई वांट माय concrete rectangular columns or a square columns to be there in my Revit family system. तो क्योंकि हमने एक डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट चूज किया था, उसमें वो फाइल्स लोडेड नहीं थी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लोड दैट पर्टिकुलर फैमिलीज ऑन टू अवर रेविट इंटरफेस। गोइंग ऑन टू इंसर्ट, अगेन मैं एस्केप करके पूरे कमांड्स से बाहर आऊंगा, गो ऑन टू इंसर्ट, आई विल लोड द फैमिली। और मेरे पास 25 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने 25 वर्जन्स की फैमिलीज को डाउनलोड नहीं किया है, सो आई विल गो ऑन टू 24 वर्जन इटसेल्फ। प्रोग्राम डेटा डिस्क, और मैं रेविट 24 की फैमिलीज को यूज़ कर लेता हूँ। सो अंडर दी लाइब्रेरीज, क्योंकि हम मैट्रिक यूनिट्स में वर्क कर रहे हैं, वी विल बी गोइंग ऑन टू इंग्लिश, यूएस और इंडिया। And then now we have to have structural columns, not architectural columns. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो columns आता है which are the category of architectural columns, तो ये हमें नहीं चाहिए, हमें structural columns चाहिए। So under the structural sections I have structural columns option, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, so I have number of other options, steel sections चाहिए, precast concrete चाहिए, mainly concrete चाहिए, तो अभी मैं concrete के ऑप्शन पे जाता हूँ। Now, as soon as I click, you can see the review कि rectangular column है with a cap, like it's used in the bridges. So I don't need this right now. I need a simple rectangular column और a simple circular column और a square column. तो मैं तीनों को at the same time upload कर लेता हूँ. One is a square column, other is circular column and a rectangular column. I can open them onto the family directly. So now, अगर मैं वापस स्ट्रक्चर टैब पे जाऊंगा और कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ टाइप्स अवेलेबल होगा मेरी फैमिली के साथ साथ, राइट। आई हैव यूनिवर्सल कॉलम, आई हैव ए स्क्वायर कॉलम विद दिस सेक्शंस, राउंड कॉलम्स विद इतना इतना रेडियस एंड डाया, आई हैव द रेक्टेंगुलर कॉलम्स विद दिस मच ऑफ डेप्थ एंड विड्थ, राइट। तो अब मुझे इन पर्टिकुलर कॉलम्स को अप्लाई करना शुरू करना है अपने प्रोजेक्ट पे। तो अभी मैं केवल प्लेस करके दिखा रहा हूँ कि प्लेस करना कैसे है। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, आप एक बाय एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सपोज मेरे को 300 बाय 450 का कॉलम प्लेस करना है, सो आई एम गोइंग ऑन टू 350 बाय 400। मैं इंडिविजुअली प्लेस कर सकता हूँ ग्रिड जहां भी इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। और अगर मुझे इसको रेक्टेंगल पे प्लेस नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेस करना है, तो मैं स्पेस की दबाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज एंगल पे शिफ्ट होती जाएगी, जिस भी एंगल पे आपको प्लेस करना है, right? So this is one way. First, and whenever you are trying to place a column, it is important to check up these particular options. तो अगर मैं डेप्थ पे करता हूं, तो जिस लेवल पे मैं हूं, लेवल 1, राइट, अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। सो राइट नाउ डेप्थ इज दिस, और हाइट दी हुई है अनकनेक्टेड एट 2500। तो मैं इसको प्लेस करता हूँ, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक वार्निंग आ गई, राइट। मैं अगेन उस चीज को प्लेस करता हूँ। सो नाउ इफ आई मूव ऑन टू एलिवेशन, अब देखोगे कि जहां पे मैं लेवल 1 पे था और मैंने उसका डेप्थ के ऑप्शन को चूज किया, सो माय कॉलम इज गोइंग बीनीथ माय लेवल नंबर 1, और हमने अनकनेक्टेड हाइट 2500 ली थी। दैट मींस लेवल 1 से 2500 नीचे कॉलम एस्टेब्लिश हो रहा है।
सो दिस इज हाउ डेप्थ इज। डेप्थ मीन्स आप जिस लेवल पे उस पर्टिकुलर कॉलम को बना रहे हैं उसके नीचे डेप्थ पे वो चीज बनेगी, इट विल गो बीनीथ इट। और अगर मुझे टॉप पे ले जाना है, उसको हाइट देनी है, सो नाउ आई विल गो बैक ऑन टू लेवल 1 और मैं चाहता हूं ऑन टू दी सर्टेन ग्रिड्स मैं एक कॉलम्स, इतने सर्टेन ग्रिड्स पे कॉलम्स को अप्लाई करूं। तो और मैं दूसरा सेक्शन ले लेता हूं एक। अब मैं इसका 450 बाय 600 का कॉलम सेक्शन ले लेता हूँ। एंड रेदर देन डेप्थ आई वुड बी गोइंग विद द ऑप्शन ऑफ हाइट। हाइट के साथ मुझे किस लेवल तक ले जाना है मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ, राइट। तो मैं अभी लेवल 1 पे हूँ, मुझे कॉलम्स लेवल 2 तक चाहिए। सो आई हैव स्पेसिफाइड हाइट की कॉलम लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने चाहिए। एंड आई हैव, मैं सिंगल सिंगल करके प्लेस कर सकता हूँ, दिस इज वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज आई कैन सिलेक्ट एट ग्रिड का ऑप्शन एट द टॉप। एज सुन एज आई सिलेक्ट इट, मुझे पर्टिकुलरली ग्रिड इंटरसेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो अब आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स इकट्ठे प्लेस हो गए। और अगर मुझे किसी कॉलम को रोटेट करना है या श्रिंक करना है, आप जस्ट उसको क्लिक करें और स्पेस बटन दबा दें, सो ऑटोमेटिकली दैट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड, राइट। आपको इसको चेंज करना है और किसी और कोई कॉलम है ये, तो आई विल जस्ट टाइप दिस कॉलम अगेन और मैं यहाँ से एक टाइप चेंज कर लेता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जितने कॉलम्स आपको एनहेंस करने होंगे वो अकॉर्डिंगली आप एनहेंस कर सकते हो। मूव ऑन टू 3D पार्ट ऑफ इट। तो देखिए कैट फाइल अभी भी विजिबल है मुझे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज पे वो एलोकेट हो गई है। अगर 3D से भी उसको बंद करना है, अगेन VG पे जाके फाइल्स को ऑफ कर देंगे, राइट। और इस तरह से हमारे कॉलम्स, अगर हम शेडेड मोड पे देखें तो वी हैव बिल्ट दोस पर्टिकुलर कॉलम सेक्शंस, राइट। सिमिलरली अब ये कॉलम्स तो हम प्लेस कर रहे हैं, सिमिलरली हम बीम्स को भी प्लेस करेंगे, राइट। और अब मैं चाहता हूं कि जितने भी कॉलम्स थे मैं उसको उसकी वर्किंग ड्राइंग रेडी करूं। दैट मींस आई एम गोइंग टू टैग इट कि कॉलम C1 कौन सा है, C2 कौन सा है, C3 कौन से हैं। सो लाइकवाइज फॉर scheduling इट मुझे उसे अभी टैग करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, अगेन I have to tag that particular thing. So under the annotate, we have an option by tagging down the categories, right? So right now I need structural columns to be tagged. So I have only the option to tag structural framing windows. तो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कॉलम्स को टैग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको लोड कर लें। I will go on to insert, load it. So under English, I will go on to US annotations, and under annotations, I will go on to structural annotations. सर ये लाइब्रेरी अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी? करेक्ट, ये आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट से जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे ही इंडियन, US, UK अलग अलग वेरिएशंस की आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, तो आप उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सर ये कॉलम वगैरह हमारे साइज के हम डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसको भी आप एडिट टाइप पे जाके अपने साइजेस के कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये अभी हमारे 3 कॉलम्स बेसिकली आ गए थे 450 बाय 600, राइट। अगर मुझे रेक्टेंगुलर कॉलम में ही सर्टेन और कॉलम्स चाहिए, तो मैं उसका डुप्लीकेट अपना एक टाइप बना लेता हूँ कि लेट मी से कि मेरा कॉलम जो है दैट इज 300 बाय 600, विड्थ इज 300, डेप्थ इज 600। मैं, मेरा एक टाइप बन गया। आप देखोगे अब रेक्टेंगुलर के अंदर एक डिफरेंट टाइप बन गया। जो कि आपने टाइप लिया है वो डायमेंशन ले लीजिए 300 बाय 600, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो ये पर्टिकुलर आपका जो भी आपको चाहिए था सेक्शन वो हो गया और वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर भी आ गया। अभी 3 थे, अब देखिए 4 टाइप हो गए उसके, 300 बाय 600 भी ऐड हो गया। सो इस तरह से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डायमेंशंस के हिसाब से। सो अंडर एनोटेट मैं अभी लोड कर रहा था, आई मिस्ड इट।
structural column का tag. So I have this like beam text and I have structural column text, right? तो मैं column tag पे चले जाता हूँ and I can open this. So it has been loaded into an project. अगर मैं अब जाके annotate की category में tag all का properties देखूंगा तो अब देखोगे आप structural column tag appear हो गया मेरे इस particular instance पे. तो जितने भी columns हैं मुझे उसे tag करना है तो मैं इस option को click कर देता हूँ, apply कर देता हूँ. तो अभी ये क्या हुआ कि जो भी फैमिली में डिटेल डला हुआ था, राइट, दैट कम्स ओवर हियर, कि जो भी नेमिंग के थ्रू डला हुआ था वो पूरा टैगिंग हो गया. अगर मैं इसकी स्केल थोड़ी बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, सॉरी, 1:50, तो आप देखोगे कि दिस इज द पर्टिकुलर कॉलम विद दिस पर्टिकुलर नेम. अब मैं चाहता हूं कि मुझे तो पता है कि 450/600 का कॉलम था या 300/600 का कॉलम था, सो आई शुड नेम इट एज C1, C2, C3 इस तरह के कॉलम्स के साथ, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं उस फैमिली को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके फैमिली पे जाऊंगा. तो ये अभी डिटेल है जो कि फैमिली पे डली हुई है. आई विल गो ऑन टू एडिट टाइप. तो यहाँ पे नेम के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. मुझे नेम के थ्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ. और मुझे एक टाइप मार्क के थ्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए. मार्क का मतलब ये होता है कि हर एक कॉलम की अपनी आइडेंटिटी है, दैट इज मार्क. तो अगर सेम टाइप के भी कॉलम होंगे तो भी वो उसको अलग अलग नेमिंग से लेगा. दैट मीन्स सेम कॉलम को भी वो डिफरेंट आइडेंटिटी देगा. बट हम टाइप मार्क तब ऐड करते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइप होता है किसी भी कॉलम का. तो यहाँ पे जैसे 4 डिफरेंट टाइप्स थे, 300/600, 300/450, 450/600. सो दीज आर द टाइप ऑफ कॉलम्स. और तो मैं यहाँ पे टाइप मार्क की प्रॉपर्टी को ऐड कर देता हूँ, राइट. और मैं इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ और फिर लोड इनटू द प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ओवरराइटिंग द एग्जिस्टिंग वर्जन. तो अब आप देखोगे कि क्वेश्चन मार्क अपीयर हो गया है. पहले नेम आ रहा था तो मैंने फैमिली से नेम रिमूव कर दिया कि कौन सा नेम था कॉलम का, दैट आई हैव रिमूव्ड. आई वांट इट टू हैव अ टाइप मार्क. अब मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी एडिट टाइप की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो मेरे पास टाइप मार्क की प्रॉपर्टीज एक्टिवेटेड हो जाती हैं. और मैं उस टाइप मार्क में इस पर्टिकुलर कॉलम को C1 के नाम से वैल्यू दे सकता हूँ. तो जितने भी कॉलम सेम साइज के होंगे उसमें C1 का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो एक टाइप था तो मुझे पता है कि ये पर्टिकुलरली 450/600 का टाइप है एंड उसमें नेमिंग C1 के फॉर्म में होनी चाहिए. सो दैट इज बीन डन. सिमिलरली मैं सेकेंड कॉलम पे जाता हूँ और वहां पे भी मेरे पास टाइप मार्क की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाएगी. लेट मी गिव इट एज C2. तो जितने भी कॉलम्स 300/600 के होंगे उनमें नेम C2 हो जाएगा. अभी एक कॉलम और है, लेट मी गिव इट अ वैल्यू ऑफ C3, राइट. तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपने वर्कफोलियो को कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशंस कहाँ इम्पार्ट करनी है. क्योंकि अब मैं इसका स्केड्यूल निकालूंगा तो उसमें मुझे दोनों चीज़ें चाहिए होंगी कि मैंने टाइप मार्क क्या दिया हुआ है और ये फैमिली टाइप कौन सा है. तो फैमिली तो मेरी को पता है कि 400/600 की रेक्टेंगुलर कॉलम की बात कर रहा हूं मैं. तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये आएगा. सेकेंड इन्फॉर्मेशन कि किस मार्क से मैं इस पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो अब मैंने उसको C1 से रिप्रेजेंट किया है तो एक C1 भी मेरे कॉलम पे आ जाएगा स्केड्यूल में. तो 450/600 इस कॉलम का नाम है C1 एंड देन उसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक है, वॉल्यूम कितना है कंक्रीट का. सो ये सब प्रॉपर्टीज फिर आप स्केड्यूल्स में ऐड कर सकते हो. सो दिस इज हाउ वी हैव टू जनरेट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द मॉडलिंग. तो आपके स्केड्यूल्स के बार एंडिंग स्केड्यूल्स भी आपको बनाने हैं तो जितना आप रेनफोर्समेंट ऑटोमेटिकली प्लेस करोगे उसके भी ऑटोमेटिकली स्केड्यूल्स क्रिएट होते जाएंगे. तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है. तो ये आपको पहले जज करना पड़ेगा. उसी बेसिस में स्केड्यूल्स की इंफॉर्मेशंस आपको हैंड ओवर मिल सकती हैं, इन हैंड मिल सकती हैं, राइट. अब मैं इस पे फुटिंग की बात करता हूँ. सो राइट नाउ हमारे पास एक बेसिक सिस्टम फैमिलीज हैं, उसी को लोड करते हैं लेवल नंबर 1 पे. तो फिर से हम देखते हैं कि चेंजेस क्या होता है और इसमें हम बात करेंगे व्यू रेंज की.
तो व्यू रेंज को समझते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटायर रेविट प्लेटफॉर्म। तो मेरे पास ये कॉलम है और मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग ही एम्बेडेड है, तो मैं केवल अभी रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग के ऑप्शन पे ही जाता हूँ। सो अंडर द यूएस I have structural foundation का categories and I have rectangular footing। मैं इसको लोड कर लेता हूँ। अब प्लेस करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं प्लेस कर सकता हूँ। सो सिमिलरली जैसे भी मैंने फुटिंग्स को प्लेस करना शुरू किया, आप देख सकते हो कि पॉपअप आ रहा है मेरे पास बार बार। दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू बी विजिबल ऑन लेवल नंबर 1, इट इज गोइंग बीनीथ लेवल नंबर 1। लेवल 1 के नीचे जाके प्लेस हो रही है हमारी फुटिंग। अगर मैं 3D में देखूं तो आप देख सकते हो कि जहां हमारा लेवल 1 था उसके नीचे हमारी ये पैड्स लग रहे हैं आके यहाँ पे, तो इसीलिए वो हमारे लेवल नंबर 1 पे विजिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसका एलिवेशन देखूं तो वो कहीं लेवल नंबर 1 के नीचे जा रहा है। तो मेरी जो भी व्यू रेंज है वो लेवल 2 से लेके लेवल 1 तक सीमित है। मैं लेवल 1 से नीचे की चीजें नहीं देख पाऊंगा, लेवल 2 से ऊपर की चीजें नहीं देख पाऊंगा, राइट। तो इसे हम व्यू रेंज कहते हैं बेसिकली। तो व्यू रेंज सेट करना कैसे है, तो मैं अगेन लेवल नंबर 1 पे जाता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी फुटिंग जो मेरी नीचे फुटिंग्स थी वो मेरे को इसी पर्टिकुलर प्लान पे विजिबल हो, मुझे एक अलग से उसके लिए प्लान क्रिएट करना ना पड़े। तो under the left hand side I have this option of view range। So this is under the extent I have the option of view range। तो मैं view range पे जाता हूँ। अब इसको समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ लेवल नंबर 1 पे। लेवल 1 पे जितनी भी चीजें कट हो रही हैं, मतलब कटिंग प्लान जो है वो मेरा 1200 पे है। माई कटिंग लेवल इज एट 1200 राइट नाउ। मैं लेवल 1 पे हूं तो आप देख सकते हो बॉटम लेवल 1 है और लेवल 1 पे ही टॉप भी मेरा लेवल 1 है, बट उस पे ऑफसेट दिया हुआ है 2300। दैट मीन्स 2300 के नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मुझे इस प्लान पे विजिबल होंगी। नहीं तो हम इवेंचुअली क्या करते हैं, लेवल 1 से लेवल 2 को एसोसिएट कर देंगे, ऑफसेट लेवल 0 कर देंगे। दैट मीन्स अभी भी मैं लेवल 1 पे हूं। अगर मैं एलिवेशन पे जाऊंगा तो लेवल 1 की बात करूं अगर मैं, तो लेवल 1 से 2300 तक, 2300 के नीचे जितनी भी चीज होंगी वो मुझे विजिबल होंगी। 2300 से लेवल 1 तक जितनी भी चीजें होंगी विजिबल होंगी। तो मैंने जो चीज नीचे बनाई है वो भी विजिबल नहीं होगी, और 23 के 100 के ऊपर भी जो भी चीजें होंगी वो भी मुझे इस प्लान पे विजिबल नहीं होंगी। तो दो चीजें करते हैं हम बेसिकली, क्योंकि हम हमेशा लेवल 1 से लेवल 2 को एसोसिएट करते हैं। तो अगर मैंने अपने व्यू रेंज को लेवल 2 पे एसोसिएट किया तो मैं उसके ऑफसेट विच वाज 2300 मैं उसको 0 बना दूंगा, राइट। और अगर मुझे नीचे की चीजें देखनी है तो मान लीजिए इसकी डेप्थ है 450, तो मेरे को लेवल 1 से सपोज 600 की डेप्थ तक जितनी भी चीजें हैं वो विजिबल होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, या मुझे ऐसा करना है अपने प्लान्स पे। तो लेवल 1 पे जाके मैं व्यू रेंज को अगेन एडिट करता हूं। सो आई डोंट हैव एन प्रॉब्लम विथ टॉप कंस्ट्रेंट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ बॉटम कंस्ट्रेंट। जो व्यू डेप्थ है मुझे उसमें प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि अपने व्यू डेप्थ के रेंज को लेवल 1 ही रहने देता हूं, बट मैं बोलता हूं कि मुझे -600 तक जितनी भी वैल्यूज हैं लेवल 1 से 600 नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे को इसी प्लान पे विजिबल होने चाहिए। तो मैं -600 की डेप्थ तक ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे क्योंकि हमारा डेप्थ जो इसका था वो 450 था जो हमने चेक किया, और हमने क्या लिया कि हमें 600 के डेप्थ तक जितनी भी चीजें विजिबल होनी चाहिए इसी पर्टिकुलर प्लान पे। तो नाउ यू कैन सी वी हैव दैट पर्टिकुलर फुटिंग्स इन प्लेस जो कि हमें इस पर्टिकुलर लेवल पे ही शो हो रही हैं। तो दिस इज हाउ हम अपने व्यू रेंज को भी अपने व्यूज के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंडली क्या होता है, अगर आप सीलिंग प्लान पे जाते हो
राइट। और अब आप सीलिंग प्लान के व्यू रेंज को देखोगे तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट रहेगा। आपका बॉटम जो है वो 2300, फर्स्ट लेवल पे ही 2300 एसोसिएटेड है, मतलब आपको 2300 से अबव की पूरी चीजें दिखाई देंगी लेवल 2 तक, जहां तक आप सीलिंग ले रहे हो। तो 2300 से आपका लेवल 2 तक आपको इस पर्टिकुलर प्लान पे विजिबल होंगी चीजें। तो इसीलिए ये सीलिंग प्लान है। तो 23 से नीचे आपके फ्लोर प्लान्स थे और 23 से ऊपर आपका सीलिंग प्लान बन रहा है। सो दिस इज हाउ व्यू रेंज इज चेंज। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कहीं भी सीलिंग बनाऊंगा, सो दैट इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड एट अ हाइट ऑफ 2500 2600, डिपेंड करता है आप कौन सा वैल्यू देते हैं। तो वो सब चीजें आपको फिर अपने आपके सीलिंग के प्लान्स पे विजिबल होंगी। अगर मैं सीलिंग प्लान ओपन करूं तो ये है पर्टिकुलर चीज। सो दिस इज हाउ केवल ये चीज फ्लोर प्लान्स पे ही एसोसिएटेड होती है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एलिवेशंस, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद सेक्शंस। तो जो भी आपकी चीजें हैं दैट इज व्यू रेंज इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद द फ्लोर प्लान्स। आप फ्लोर प्लान्स पे कौन कौन सी चीजें कैसी देखना चाहते हैं, दैट इज व्यू रेंज। किस डेप्थ तक देखना चाहते हैं वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आप 10 मिनट्स प्रैक्टिस करने को ले सकते हैं। देन वी विल मूव विथ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज फैमिली क्रिएशन का कॉन्सेप्ट। वी हैव वन मोर थिंग लेफ्ट। हम व्यू क्रॉप रोटेशन इसके लिए भी देख लेंगे एक बार। So in case anyone is having any questions, please feel free to ask. We will resume this session by 11:40 then. सर ये हमने कैट जब इंपोर्ट किया था तो हमने उसकी लेयर रेविट्स में कहाँ से बंद करी थी, एक बीजी के अलावा आप बता रहे थे। हाँ, आप जैसे भी कैड को सिलेक्ट करेंगे, कैट फाइल को सिलेक्ट कीजिए हाँ। रेविट पे, तो ऊपर एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा क्वेरी का। हम्म। क्वेरी पे जाइए, जो भी लेयर्स बंद करनी है उस पर्टिकुलर लेयर्स को क्लिक करिए, तो फिर आपके पास डिलीट या हाइड का ऑप्शन आएगा, चलो। है ना। तो यहाँ से तो आप आ नहीं उसको रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। राइट। हाँ, नहीं नहीं गलत, एस्केप कीजिए। हाँ, पहले इस लिंक को सिलेक्ट कीजिए जो आपने इंसर्ट किया ना कैट फाइल, उसको सिलेक्ट हम्म। कीजिए। करेक्ट। अब क्वेरी के ऑप्शन पे जाइए। अब पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए फर्नीचर आपको नहीं देखने हैं प्लान में, फर्नीचर पे क्लिक करिए। हाँ करेक्ट, यहाँ पे। हाँ, क्लिक करिए फर्नीचर पे। यस, नाउ यू कैन सी डिलीट एंड हाइड ऑप्शन इज देयर। आपको हाइड करना है तो हाइड कर दीजिए, फिर से क्लिक कीजिए, जो भी लेयर्स चाहिए हाइड कर दीजिए। तो आपका एक ही बट चीज ये तो हाइड हो नहीं रहा है इधर। तो वो मल्टीपल लेयर्स पे बना होगा, कैट फाइल्स में इश्यूज होंगे, यही कह रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, टेक्स्ट को बंद करके देखिए, किसी भी टेक्स्ट को। कैट फाइल में ये चीज पूरी ब्लॉक में बनी हुई है क्या? हाँ। हाँ, तो ये इशू होगा उसमें। क्योंकि आप उसको एक बार ब्लॉक बना दोगे तो फिर वो केवल एक ब्लॉक की एंटाइटी को ही लेगा। यहाँ पे जैसे लाइन थी तो वो ऑफ हो गई, राइट। ठीक।
आपने जैसे इवेंचुअली कैट फाइल पे भी पूरी कैट फाइल लेके आ गए थे ना, तो जब हम उसको रेविट पे लाते हैं तो उसमें भी हमें सेपरेशंस करने पड़ते हैं कि आप ग्राउंड फ्लोर को केवल 00 यूसीएस सेट करके कैड में फ्लैटन कमांड लगा दीजिए कि फ्लैट कुछ भी हो, एरर्स ऑडिट कमांड एक बार लगा दीजिए, पर्ज कर दीजिए, और उसके बाद उस कैट फाइल को 00 लेवल पे सेट करके ग्राउंड फ्लोर का एक अलग फाइल बना लीजिए, फर्स्ट फ्लोर का अलग बना लीजिए, और भी जितने फ्लोर्स हैं उसको अलग बना लीजिए। तो जैसे हम लेवल 1 पे थे अभी, तो हमने उसमें ग्राउंड फ्लोर इंसर्ट किया, राइट। हो सकता है फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग अलग हो, तो जब हम उसमें सेंटर टू सेंटर ऑप्शन पिक करते हैं तो एग्जैक्ट रेविट के 00 कोऑर्डिनेट पे वो चीज आएगी। सिमिलरली मैं फर्स्ट फ्लोर अगर लाना चाहता हूँ तो अब मैं लेवल नंबर 2 पे होऊंगा और मैं वहां पे फर्स्ट फ्लोर को सेंटर टू सेंटर इंसर्ट करूंगा। तो एक्चुअली में जहां पे भी आपकी रेविट कैट फाइल का ग्राउंड बेस था, वहीं आपको कैट फाइल की फर्स्ट फ्लोर का भी बेस मिल जाएगा। सो दिस तो उसमें आपको इतना डेटा लाने की किसी भी फाइल पे जरूरत नहीं है, तो आप उसको सेपरेट कर लो तो इजी हो जाएगा काम ज़्यादा। एक सर और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लिंक कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म ये एरर आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, अगर आप ओके भी करोगे तो वो फाइल आ जाएगी, बट वो डिस्टॉर्टेड आएगी क्योंकि वो 33 किलोमीटर्स के रेंज के विद इन चले गई। सो ये एक बोल सकते हो आप रेविट की लिमिटेशन है कि वो ज़्यादा या बहुत बड़ी साइट्स को इनकैटर, अगर आप ओके करोगे ना फाइल आ जाएगी आपकी, करके देखिए ओके, बट वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री में आती है कि आप उसमें जूम करोगे तो जूम दिखाई नहीं देगा, या वो लाइन आपको कटती हुई दिखाई देगी, विजिबिलिटी ग्राफिक्स की फिर उसमें काफ़ी सारी इश्यूज आ जाते हैं। क्लोज, ये आपका जो भी है ग्राफिक्स भी उतने पर्टिकुलर रेंज को सपोर्ट नहीं कर रहा। तभी मैंने बोला आपको कि उतना बड़ा फाइल लाने की बजाय, क्योंकि जो मैं फाइल में देख रहा था उसमें मल्टीपल चीज़ें थी, तो फाइल तो आपकी आ जाएगी, बट अब आप उसको कभी भी जूम इन और आउट करके देखोगे ना तो चीज़ें अपने आप वेरी करने लगेंगी, वहाँ पे वो इशू होने लगता है। अभी तो ये आई थिंक परफेक्टली आ गई है, इसमें उस ग्राफिक्स का कोई इशू नहीं है। अब मैंने पिछले 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी साइट को, हेक्टेयर्स की साइट को इंसर्ट किया था, तो उसमें यही इश्यूज आ रहे थे कि लाइन आपको एक समय पे दिखती है, फिर वही लाइन आपको किसी और पोजीशन पे दिखेगी। ये स्केल सही नहीं है इसका। हाँ, तो फिर आपको इस पर्टिकुलर कैड फाइल, तभी मैं बोल रहा था कि अभी इसमें मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, तो आपको कैड में भी उस चीज़ को सॉर्ट करके लाना पड़ेगा कि एक ही ड्राइंग हो और वो मेरी सेंटर टू सेंटर आए, तो वो एग्जैक्ट स्केलिंग्स पे आएंगी। अभी तो स्केल भी वेरी करेगी आपकी, फिर आपको स्केल सेट करने में टाइम लग जाएगा रेविट में, ऐसा। सर इसमें कॉलम कहाँ पे होगा? स्ट्रक्चर के टैब पे जाइए, यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा पे जाइए, नीचे नीचे प्रोग्राम डेटा, डबल क्लिक, ऑटोडेस्क ऊपर, यहाँ पे आप अब कौन सा वर्जन है आपका? 24, तो रेविट 24। हाँ, तो रेविट 24 ढूंढिए, ये आई गेस, हाँ, डबल क्लिक करिए, लाइब्रेरीज पे जाइए, इंग्लिश पे जाइए, यूएस पे जाइए, तो यहाँ पे अभी आपके पास डाउनलोडेबल फैमिलीज नहीं है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम पे जाइए और वहाँ पर टाइप करिए, हाँ, क्या टाइप करना है? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि आपकी ये स्क्रीन, स्क्रीन शेयर नहीं क्योंकि है। हाँ, तो आप हाँ डाल दीजिए ऑटोडेस्क लाइब्रेरी फैमिली लाइब्रेरीज, हाँ सर। है ना।
रेविट आप कंटेंट एक बार लाइब्रेरी डेस्क करेक्ट, से। हाँ, तो ये आप ओपन करेंगे तो इसमें मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की आपको मिल जाएंगी, यूके यूएस। तो हमारे जो इंडिया में बेसिकली यूज होती हैं वो यूके रेफरेंस या यूएस रेफरेंस के बेसिस पे होती हैं। एक इंडियन लाइब्रेरी भी होगी, बाकी फ्रेंच पोर्तुगीज ये सब करने की ज़रूरत है नहीं। तो वो लाइब्रेरीज आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके सर, थैंक यू। है ना। तो हम इसी के साथ अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इवेंचुअली अगर ये पर्टिकुलर फ्लोर प्लान है मेरा, या कुछ भी ड्राइंग्स बनी हुई है इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे, और मुझे उसे शीट्स पे ले जाना है, तो मेरे को तीन चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं वहाँ पे, कि उस पर्टिकुलर व्यू का स्केल क्या होगा, उस पर्टिकुलर व्यू का क्रॉप रीजन क्या होगा, और उस पर्टिकुलर व्यू को मैं प्लेस कैसे करूँगा, व्हाट वुड बी इट्स रोटेशन पार्ट, एनोटेशन पार्ट। तो हम इसमें एनोटेशन क्रॉप भी लगा सकते हैं, व्यू क्रॉप भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें व्यू क्रॉप के रीजन को एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो इसी पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे अगर मैं ले जाता हूँ इसको शीट पे, तो मैं अंतर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे शीट्स है और एक भी शीट्स डाउनलोडेड नहीं है, राइट। तो आई हैव द ऑप्शन ऑफ व्यू, और व्यू में शीट्स का ऑप्शन आता है, राइट। तो अभी मेरे पर्टिकुलर टेम्पलेट में एक शीट ही लोडेड है, A1। मुझे फर्दर शीट्स चाहिए होंगी तो मैं अगेन लोड फैमिली पे जाऊंगा, वहां से टेम्पलेट्स पे जाऊंगा, और A1 A2 A3 A4 आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड पोर्ट्रेट बोथ। आप कस्टम फैमिलीज बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं A1 की एक शीट को लोड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट पे। तो आप देखोगे कि मेरी शीट लोड हो गई। अब शीट के अंडर में पहले कुछ नहीं था, अब ये पर्टिकुलर शीट आ गई मेरे पास, A101, जो भी नेमिंग दिया हुआ है इसका, राइट। और मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर व्यू मैं इस पर्टिकुलर A1 शीट पे लाके देखूं। तो मैं लेवल 1 को क्लिक करता हूँ, उसमें मेरी ड्राइंग बनी हुई थी, और मैं उस लेवल को लाके यहाँ प्लेस करता हूँ, राइट। अब आप देखोगे कि ये तो आया, किस स्केल पे आया, जिस पे लेवल 1 था। तो 1:50 की स्केल पे ये ड्राइंग मेरी इनपुट हो गई है मेरी शीट्स पे। तो अगर शीट्स में मैं ये आपने ये ड्रैग किया था आपने? हाँ, केवल ड्रैग किया मैंने लेवल 1 को सिलेक्ट करके, तो अब आप देखोगे उसमें ब्लू आइकन आ गया। सिमिलरली मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, मान लीजिए, राइट। और मैं लेवल 2 को लाना चाहता हूँ। तो लेवल 2 पे जस्ट मेरा क्लिक है, मैं लेवल 2 पे हूँ और उसको ड्रैग किया मैंने, और ये लेवल 2 पे आ गई। जो भी मेरी कैट फाइल थी वो आई है, जो भी स्केल था उसका 1:100, उस स्केल पे वो पर्टिकुलर व्यू मेरी शीट पे एलोकेट हो गया है। अब आप देखोगे कि इसमें आपको ये बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, राइट। सो इट इज अबाउट द एक्सटेंट। मुझे अपनी शीट में ये फालतू का यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि केवल इतना पोर्शन मेरी शीट पे पर्टिकुलर स्केल पे इनपुट हो जाए। इतना वाइड स्पेस फ्रेम मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे शीट में मैनेज भी करना है अपने व्यूज को। एक प्लान होगा तो एक सेक्शन होगा सेम चीज का, एक एलिवेशन होगा, तो मुझे उस पर्टिकुलर स्केल पे चीज़ों को सेट भी करना है। तो इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए अगर मैं लेवल पे ही जाता हूँ बैक, और मैं यहाँ पे इन तीन ऑप्शंस को एक्टिवेट करता हूँ, क्रॉप व्यू को, क्रॉप रीजन को विजिबल करता हूँ, तब आप देखोगे कि वो जो पर्टिकुलर स्क्वायर वहाँ आ रहा था वो एक्टिवेट हो जाता है। और अगर एनोटेशन को भी क्रॉप करता हूँ तो एक और पर्टिकुलर लाइन अपीयर हो जाएगी उसमें। इसमें दोनों एक में ही अपीयर्ड है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो क्रॉप विजिबल रीजन को अब मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ, कि मुझे ये पर्टिकुलर रीजन केवल इतना ही चाहिए, इतना ही दिखाना है मुझे, और एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेसेस की कोई नेसेसिटी नहीं है। तो मैंने इस पर्टिकुलर रीजन को सिलेक्ट करके इन दोनों को ऑफ कर दिया। सो नाउ माय क्रॉप रीजन इज सिलेक्टेड ऑन टू द लेवल 1। अब मैं अपने शीट्स पे जाता हूँ बैक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ,
लेवल नंबर 1 को मैं वापस लाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग आई कैन क्रॉप इट फ्रॉम हियर एज वेल। तो अब ये पर्टिकुलर चीज मेरी इतने क्रॉप विजिबल रीजन पे ही है, और मैं पर्टिकुलरली इस पॉइंट को भी ड्रैग करके ला सकता हूँ कि ये कौन सा एलिवेशन किस स्केल पे है। तो वंस आई सिलेक्ट दैट व्यू, ये भी एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो फिर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। सो दिस इज लेवल 1। अगर आपने इसको ग्राउंड फ्लोर नाम दिया होता तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर आ जाता, किस स्केल पे है ये आ जाता, कौन सा टैग मार्क है ये आ जाता। तो ये भी एक प्रकार की 2D फैमिली है। सिमिलरली अगर एक सेक्शन भी काट लेते हैं कहीं से और उसको भी इनपुट करके देख लेते हैं, तो एक शीट कंपोजिशन का भी हल्का सा पार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे इसी की स्केल चेंज करनी है। सो सपोज आई हैव टू मेक इट एज 1:100, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर व्यू 1:100 की स्केल पे हो गया, अभी 1:50 पे था। नाउ बैक टू लेवल नंबर 1, और मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये क्रॉप रोटेशन आप देखोगे, अब क्रॉप एनोटेशन भी एक्टिवेटेड हो गया है। मैं अभी सबको बंद कर देता हूँ, और यहाँ से किसी भी कॉलम का एक सेक्शन काट लेते हैं पूरा। तो सेक्शन के लिए ये टॉप में आप सेक्शन देख सकते हो, सेक्शन को पुट ऑन किया, और मैंने यहाँ से एक सेक्शन काटा है इस लाइन से। इसकी भी आपको विजिबिलिटी रेंज कहाँ तक मेंटेन करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे को इतना पोर्शन विजिबल हो सेक्शन काटने के बाद। तो अब सेक्शन के टैब्स में भी सेक्शन 1 एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज सेक्शन 1। यहाँ पे भी पर्टिकुलर क्रॉप विजिबल रीजन लगा हुआ है। मैंने उस विजिबल रीजन को जितना मुझे पोर्शन केवल चाहिए था मैंने उतना रखा, एंड आई विल बी बैक ऑन टू दी शीट, और मैं सेक्शन 1 को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि इसमें जो पार्ट है वो एनोटेशन रीजन का है। सो वंस आपको ये 4 कैमरेज भी नहीं देखने हैं तो आप एनोटेशन रीजन्स को डिसेलेक्ट कर देंगे और फिर उसको इतने ही रीजन पे लाएंगे, तो ये कैमरेज भी आपके चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट एनोटेशन क्रॉप मींस, कि जितने भी अदर एनोटेशंस है ना वो सब भी आ जाएंगे, तो आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने सेक्शन लाया, तो सेक्शन 1:100 की स्केल पे है। सेकेंड पार्ट इज सेक्शन, जो भी नेम था सेक्शन का, सेक्शन 1 दैट अपीयर्स ऑन टू द सेक्शन, राइट। तो इस तरह से अगर मुझे कुछ भी मैनेज करना हो, तो मैंने बॉक्स को अभी नहीं चाहिए था मुझे बॉक्स, तो मैंने बॉक्स को ऑफ कर दिया। लाइकवाइज यहाँ पे भी हमें विजिबल क्रॉप रीजन नहीं चाहिए। सो दिस इज व्हाट द क्रॉप रीजन इज, और मैं क्रॉप रीजन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, सो दैट मुझे कैमरेज वहाँ पे विजिबल ना हो। सो आप देखोगे कि क्रॉप रीजन भी आपका, जो भी कैमरेज थे वो भी डिसअपियर हो गए हैं व्यू से। So this is how crop regions needs to be applied and bring it onto the sheet directly by dragging and dropping. And eventually you can set all the view scales onto the sheet accordingly. कि A1 में this is okay और it needs to be 1:100, तो मैं just जाके 1:50 कर देता हूँ, तो स्केल वैसा हो जाएगा जिस भी स्केल पे मुझे चाहिए होगी चीज़ें, जिस भी लेवल्स पे मेरे को डिटेल्स दिखानी होंगी लाइकवाइज, तो वो सब मैनेज कर सकते हैं हम। अच्छा, आप एक बार फिर से बता सकते हो आपने सीट कहाँ से लिया था? शीट्स मैंने ओपन किया है, आपका लोड फैमिली के ऑप्शन से भी आता है, और अगर आपका डाउनलोडेड होगा तो व्यू के ऑप्शन पे जाइए। ओके। व्यू में आपके पास ये एक ऑप्शन आता है हल्का सा शीट्स का, स्केड्यूल्स के जस्ट राइट हैंड साइड पे।
मिल गया सर? हाँ सर, मिल गया। ठीक है, डन। अब हम एक चीज देखते हैं बेसिकली, जैसे हमारे पास फाउंडेशन में केवल रेक्टेंगुलर फुटिंग थी, हमारे पास ट्रेपेजॉइडल फुटिंग नहीं थी, पाइल फुटिंग थी। तो जो चीजें नहीं हैं हम उसको कस्टमाइज तरह से कैसे बना सकते हैं हम वो देख लेते हैं। तो एक फैमिली का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बाकी आज के टॉपिक्स के हिसाब से तो कवर कर ही लिया है हमने। और विल जस्ट सी कि ये फैमिलीज में रेफरेंस प्लेन कैसे वर्क करते हैं, तो ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन केस जब आप फैमिली, डोर की फैमिली या विंडो की फैमिली डायरेक्टली बनाएंगे, तो क्योंकि वो टिपिकल फैमिलीज में आती हैं। सो अब मुझे एक फैमिली बनानी है, तो अब मैं प्रोजेक्ट के ब्राउजर पे नहीं जाऊंगा, आई वुड बी गोइंग ऑन टू फैमिलीज ऑप्शन। तो न्यू फैमिलीज, मुझे मैट्रिक पे काम करना है, तो अगेन मैं इंग्लिश पे चले जाता हूँ और यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरी विच इज स्ट्रक्चरल कॉलम फैमिलीज फ्रेमिंग और फाउंडेशन, इस नाम से होगा। सो आई हैव दिस मैट्रिक स्ट्रक्चर फाउंडेशन, तो मैं इस पर्टिकुलर फैमिलीज को ओपन कर सकता हूँ अपनी फैमिली बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज लाइक 0 0 रेफरेंस प्लेन। तो हमने रेफरेंस प्लेन पे चीजों को सेट किया हुआ है, मतलब ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 0 पे सेटेड है। तो दिस इज सेंटर और ये पिन है, तो आप इसको मूव तभी कर पाओगे जब आप पिन को अनपिन कर दोगे। बट डोंट डू दैट, क्योंकि ये प्रीफिक्स्ड सेटिंग्स हैं, इसको ना डिस्टर्ब करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर प्लेन को मूव कर सकते हो, राइट। तो अब मुझे एक ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का क्रिएशन करना है which can be of say thickness, certain thickness, but जिसका width and depth जो होगा footing का that is going to be say 1000 mm somehow। तो मैं इस सेंटर रेफरेंस पॉइंट को राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर के ऑप्शन पे जाता हूँ और पिक लाइन करता हूँ। पिक लाइन करने के बाद मुझे 1000 mm का बेस बनाना है, तो मैं ऑफसेट कर देता हूँ 500 का। ओके, तो इस सेंटर लाइन से मैं 500 इस साइड ले रहा हूँ, 500 इस साइड ले रहा हूँ। सिमिलरली 500 ऊपर ले रहा हूँ, 500 नीचे ले रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा बेस जो रेडी हो गया दैट इज गोइंग टू बी 1000 mm फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, 500 फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ओवरऑल 1000 mm बाय 1000 mm का एक बॉक्स का रेफरेंस आपको दिख रहा है कि मिल गया। अब मैं इसमें जो भी एलिमेंट बनाऊंगा व्हाट आई नीड टू डू इज मुझे उसका पैरामीटर बनाना है कि मैं उसको कभी भी अपने प्रोजेक्ट पे लेके जाऊं तो मैं वहां पे भी उसमें मॉड्यूलेशंस या चेंजेस कर पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आई एम गिविंग अ डायमेंशन कंस्ट्रेंट। तो मैंने यहाँ दोनों रेफरेंस के बीचेस में डायमेंशन लगा दिए और इसका एक ओवरऑल डायमेंशन लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने डायमेंशन लगा दिया और एक मैंने ओवरऑल डायमेंशन लगा दिया। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरा सेंटर प्लेन फिक्स है, मेरा ऑब्जेक्ट जो भी मूव हो वो सेंटर प्लेन के अराउंड इक्वल इक्वल मूव हो। तो अगर मैंने इसका डायमेंशन 1200 कर दिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सेंट्रल रेफरेंस से 600 यहाँ पे भी मूव करे, 600 यहाँ पे भी मूव करे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, सेंटर लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड पे ऑब्जेक्ट मेरा मूव करे। तो इसीलिए मैंने ये 500 500 जो इक्वल डिस्टेंस है उसको मैं इस आइकन पे जाके क्लिक करता हूँ EQ पे। तो अब आप देखोगे कि EQ, अब जो भी ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा तो वो इक्वल डिस्टेंस पे मूव करेगा इसके विद इन। सिमिलरली मैं इसको भी EQ कर देता हूँ। ओके, अब मैं ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करना शुरू करता हूँ। तो अभी मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिए, मेरे को पता है कि इतने स्क्वायर की फुटिंग बनानी है, ट्रेपेजॉइडल हो या जो भी हो, ये उसका बेस है 1000 mm बाय 1000 mm। तो मैं पैरामीटर्स भी बनाते जाऊंगा बाद में, अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ सिंपल। तो मैं क्रिएट के ऑप्शन में जाके आई विल गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर एक्सट्रूजन ऑप्शन और मैं पिक लाइन करके ऑप्शन को यूज करता हूँ। तो जैसे भी मैंने इसको पिक किया आई विल लॉक दिस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी फैमिली पे वर्क करने का, कि आप जिस भी लाइन को पिक करोगे उसको लॉक करोगे। इसका रीजन ये है कि जैसे भी मैं अब रेफरेंस प्लेन को मूव करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट भी वैसे ही मूव होगा, नहीं तो अगर मैंने लॉक करना छोड़ दिया तो
केवल मेरे रेफरेंस प्लेन मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो वो किसी सेंस का नहीं है। और अब मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैं स्क्वायर बेस बनाना चाह रहा था विच शुड बी एट अ हाइट ऑफ से 150। तो ये 150 मेरा बेस हो जाता है और मैं इसमें ओके कर देता हूँ। सो नाउ यू सी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है रेफरेंस प्लेन पे। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर बेस। और अब मैं इसका पैरामीटर बना लेता हूँ विच इज 1000 राइट। तो मैं एक पैरामीटर बनाता हूँ यहाँ से, क्रिएटिंग अ न्यू पैरामीटर। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ कि फाउंडेशन का एफ, फाउंडेशन बेस का ये विड्थ है। एंड फैमिली पैरामीटर्स के अंडर में मैं इसको इंस्टेंस पैरामीटर रखता हूँ। लेंथ इसका टाइप होगा क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ को एक पैरामीटर में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। डायमेंशंस ग्रुप का नेम डायमेंशन है विच इज परफेक्टली ओके। मैंने एक पर्टिकुलर पैरामीटर बना लिया। सिमिलरली मैं फाउंडेशन बेस के डेप्थ का एक और पैरामीटर बना लेता हूँ, सेम लेंथ सेम डायमेंशंस ओके। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स बन गए विच हैज अ वैल्यू ऑफ 0 एंड 0। अप्लाई करके मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से उसको वो पर्टिकुलर पैरामीटर दे देता हूँ कि दिस इज माय फुटिंग बेस की विड्थ एंड दिस इज गोइंग टू माय फुटिंग बेस का डेप्थ। तो अगर मैं अब फैमिलीज पे जाऊं तो आप देखोगे उनको पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारा था वो एसोसिएट हो गया है, राइट। अब मुझे यहाँ चेंज करना है विड्थ। तो मैं 1200 अगर करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे मेरा ऑब्जेक्ट भी इक्वली मूव किया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन भी इक्वल मूव कर रहे हैं एंड मेरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल मूव किया। सिमिलरली मैं डेप्थ को भी चेक कर लेते हैं। डेप्थ को अगर मैं 1500 कर देता हूँ तो अब 750 ऊपर जाएगा, 750 नीचे आएगा। सो दिस इज हाउ द फैमिली वर्क्स। तो आपके रेफरेंस प्लेन के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट भी मूव करना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस प्लेन्स। तो अब मेरे पास पैरामीटर्स जनरेट हो गए हैं। जब मैं इस पर्टिकुलर फैमिली को प्रोजेक्ट पे लेके जाऊंगा तो मैं वहां पे भी इसके डायमेंशंस को चेंज कर सकता हूं अपने साइजेस के हिसाब से। तो इसलिए हमने उसे पैरामीटर्स में कन्वर्ट किया है, राइट। तो अभी मैं बेसिक अगेन जितना हमने लिया था 1000 बाय 1000 मैं उतने पे ही चेंज कर देता हूँ, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। सो दिस इज द बेस विच इज बीन प्रिपेयर्ड। नाउ आई नीड सर्टेन अदर थिंग्स। तो ट्रेपेजॉइडल बनाने के लिए अगर हम इसके फ्रंट पे जाएं तो अभी बेस कुछ इस तरह का है। अगर मैं इसे नेगेटिव वैल्यू पे ले जाता हूँ -150 में तो ये जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, राइट। हम इसकी हाइट को भी एक पैरामीटर बना सकते हैं कि अगर आपको कहीं हाइट भी चेंज करनी हो तो हम उसको भी रेगुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं ट्रेपेजॉइडल पार्ट पे। तो फिर से मैं एक चीज बनाऊंगा नाउ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंड। तो ब्लेंड टूल क्या करता है ये आप इसमें देखिए। एक ऊपर डिफरेंट शेप है, एक नीचे शेप की थिकनेस अलग है। शेप भी वेरी कर सकता है, इवेंचुअली ऊपर भी शेप वेरी कर सकता है, बट वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग ब्लेंडेड मोड जो भी हो। तो अब मेरा बेस तो स्क्वायर है, मेरे को एक और स्क्वायर के बेस में मेरी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक बेस बनाऊंगा विच इज रेक्टेंगल और सिमिलरली इन चारों पोजीशंस को लॉक कर दूंगा और फिर एडिट टाइप पे जाऊंगा और मुझे एक पर्टिकुलर बेस चाहिए फिर से कि टॉप मेरा इतना है और बाकी ट्रेपेजॉइडल इतना है and I have certain depth associated with it. So now I can make. So now if you see, this has been prepared something like this, right? अगर इसको शेडेड में देखें तो कुछ इस तरह से हमने एक फैमिली क्रिएट कर लिया। Now I will be saving this family. I will save as a family and I will give it a name as
ट्रेपेजॉइडल से, जो भी नाम है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, राइट, एंड आई विल सेव इट एट डेस्कटॉप राइट नाउ। मैं सेव कर लेता हूँ, एंड नाउ इट हैज बीन सेव्ड बाय अ फैमिली नेम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। आई विल लोड इट इनटू अ प्रोजेक्ट। तो अभी कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, सो मीनवाइल आई विल ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट। Let's have the same thing. And I have loaded that. So with the components, if you now place it, I don't think so it has been loaded. Load a family कर सकते हैं from the desktop. I have saved the trapezoidal footing. I will open it. So now I can place the trapezoidal footing which I have created onto my project file. तो अब मैं project पे place कर रहा हूँ, तो जो भी grids आएंगी, so I can take certain grids directly, राइट, जितने भी डिस्टेंस पे हैं आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। विल टेक सर्टेन हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स एज वेल। और अब मुझे वो पर्टिकुलर चीज यहाँ प्लेस करनी है, सो आई कैन जस्ट bring that family and I can place it. So this is how, तो ये नीचे जाएगी, ऊपर नहीं आएगी बेसिकली, अभी केवल प्लेस किया उसको। सो दिस इज हाउ वी कैन कस्टमाइज अवर फैमिली टाइप्स आल्सो एंड वी कैन ब्रिंग देम एज अ कंपोनेंट ऑनटू आवर रेविट प्रोजेक्ट। सर सर बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, अगर हमें इसेंट्रिकली कुछ प्लेस करना हो, जैसे अभी ग्रिड लाइन के सेंटर में हम कोई चीज प्लेस कर रहे हैं तो इजीली हो पा रहा है, करेक्ट। बट अगर इस जैसे कॉलम है 300 बाई 600, मेरे को 150 और 450 ऑफसेट पे रखना है ग्रिड लाइन पे, सो देन हाउ वी। इनिशियली वो इसमें जस्टिफिकेशंस के कुछ ऑप्शन नहीं है। इनिशियली ईदर यू हैव टू मूव इट और अलाइन इट, दो ऑप्शंस ही हैं, क्योंकि जस्टिफिकेशन इसमें आई डोंट थिंक सो वर्क करता। अब मुझे इसको अलाइन ही करना है सर्टेन ऑफ ग्रिड, तो मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ इस फेस को। तो इस तरह से चीजें होंगी, बट अलाइन इज नॉट अ सुटेबल टूल बिकॉज इट हैज अ प्रीफिक्स्ड डायमेंशंस टू इट। तो वो आपको थोड़ा मैनुअली ही मूव करना पड़ेगा, दैट इज लाइक 150, और उसको फिर एक कंस्ट्रेंट लगा दो आप यूजिंग डायमेंशंस। 350 है जो, सेम थिंग, सेम चीज हम कॉलम में भी कर सकते हैं। हाँ करेक्ट, सेम चीज आप कॉलम्स पे भी कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब इसमें जस्टिफिकेशन का एक मोड नहीं है, जो कि आई थिंक मिसिंग है। नहीं तो जस्टिफाई करने से हम उसके एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स को जस्टिफाई कर देते हैं, तो इवेंचुअली वो मैप अप हो जाती हैं चीज़ें। बट इसमें ऐसा सच नहीं है कि हम कस्टमाइज फैमिली अगर ला रहे हैं, सो वी हैव टू प्लेस इट मैनुअली समहाउ। ओके सर। ओके, तो रैप अप करते हैं सेशन को। कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज के सेशन के लिए आई थिंक डन है। विल प्रोसीड टुमारो विद फर्दर टॉपिक्स। अनुराग भी, कैन यू शेयर योर नंबर? सर नंबर इज 931, चैट पे ही शेयर कर दूं मैं? हाँ प्लीज। 931747976। चैट पे शेयर कर दिया सर मैंने। आया नहीं यार नंबर? Sir, I have shared it onto the chat box. नॉट विजिबल सर। दिख नहीं रहा अभी, वैसे बता। एक सेकंड, आई थिंक हाँ ऐसे ही लिख लीजिए सर आप, 931 974 7976।
931-974-7976. Correct, sir. Correct. Thank you. Thank you. Okay, sir. We'll wrap up this session then. So thank you, everyone. Hope this would have been insightful for you. Yeah. Bye bye. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.